time is ripe, and now the armed forces, the Air Force of Egypt, if they don't act now, both countries which are bordering there, or don't let the other to help them, like Pakistani pilots, the present king's father called the Pakistani pilots and they beat the hell out of the Israelis pilots, and their bloody F-16 or F-35 will be just destroyed in the dogfight over their own cities, and they have to level their whatever they built in the last 75 years. This is the only punishment that you have, and let them hide in the caves. But leave alone the good Jews. Don't touch them. Just take care of them, and leave a small part of that Jewish population, which have been there for centuries, and let them live in peace and worship in the Wailing Wall. There shouldn't be any, as had in Islam, compulsion in religion. So both the Christian, Jews, everybody should have complete freedom to worship, and unless you get rid of this menace, you are not going to have peace in the world. You are not going to have any cargoes, passing through the Red Sea or the Mediterranean Sea or the other oceans in the world, because the Houthis are going to kill you, and so are they going to be Hezbollah, Hamas. And don't you underestimate now that the people in the West Bank, each one is going to take their balance what you've been doing to them to the last 70 years. They're going to get their land back, their houses back, their honor back, and then throw those bloody settlers who came, those drunkard, the puppets who came here, as it was your father's land, to come and loot. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים. אבל אנחנו הולכים למסלול התנגשות עם הממשל האמריקאי. ארצות הברית זה לא מקשה אחת, זה לא מקשה אחת. יש את הסנאט, יש את הקונגרס, יש את הכוח היהודי שהוא עצום, יותר חזק משהיה אי פעם. יש דעת קהל, יש לנו כוחות כבירים בדעת הקהל שמתנגדים למדיניות הזאת, גדולי הפרשנים. אמריקה לא תכפה לנו דבר אם לא... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा से एक खतरा मौजूद था कि ईरान के ऊपर इसराइल ने जब स्ट्राइक करना है इस दफा तो सब कुछ उड़ा कर रख देना, राख का ढेर बना देगा, पत्थरों के दौर में पहुंचा देगा। इसराइल ने हालिया धमकियां भी दी, आपको पता अमेरिका ने भी दी। अब सारे ये कहते थे कि ठीक है जी, ईरान का मिसाइल सिस्टम तो बड़ा जबरदस्त है, वो मार सकता है, रोकने की भी सलाहियत है कि नहीं। आज ईरान ने अपना सबसे बड़ा इस मामले में मार का सर अंजाम दे दिया है। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ईरान ने अपना सबसे अहम तरीन एडवांस डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टेड मिसाइल जो उन्होंने लोकली बनाया है, ये उन्होंने बवार 373 सारी दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया है। अब ये करेगा क्या कि 450 किलोमीटर दूर से अगर इसराइल का जेट आ रहा होगा, चाहे वो F-35 हो, स्टेल्थ हो, ये याद रहे बात, जो रेडार पर डिटेक्ट नहीं होता, और इनके बकौल अब ये होता है, चाहे वो स्टेल्थ फाइटर जेट हो, अमेरिका के बॉम्बर्स हो, चाहे वो राफेल तैयारे हो, टाइफून हो, कुछ भी हो, 450 किलोमीटर बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है। 450 किलोमीटर यानी आप सादे अल्फाज में समझना चाहते हैं तो इस्लामाबाद से लाहौर का फासला उससे भी थोड़ा सा ज्यादा आप कर लें, तकरीबन 400 सवा 400 किलोमीटर के करीब बनता है। तो आप ये सोचो अगर वहां पर भी होगा जेट वहां से, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा, और जैसे ही वो 300 किलोमीटर तक आगे आएगा, ये वहीं से उसको उड़ा देगा।
यानी 450 किलोमीटर दूर होगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद जब तकरीबन 300 किलोमीटर दूर रह जाएगा तो ये उसको उड़ा देगा। ये ईरान ने आज अपना डिफेंस सिस्टम सारी दुनिया के सामने लॉन्च करके इजराइल को पैगाम दिया है कि आ जाओ भाई, हमला कर लो, अब हम तैयार हो चुके हैं, अब हमें दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हमने जितना करना था वो कर लिया। अब इस सारी सूरत हाल में आज अमेरिका से लेकर बाकी ताकतों, देखिए याद रखिएगा इस दफा की सूरत हाल, ये ईरान का वो सिस्टम नहीं है जो ईरान ने बना सिस्टम है। अब ये बात नहीं पता किसी को कि क्या ये वो डिफेंस सिस्टम है, इसमें यानी वो सलाहियत भी है जो इसराइल के डिफेंस सिस्टम और बहुत सारी चीजों में नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये, उनको पता है कि भाई हम पर हमला जो होना है वो होना जो स्टेल्थ फाइटर है, जो रडार पर नहीं आता, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, तो हमने ये लल्लू पंजू अगर बनाएंगे तो ये फिर कैसे काम करेगा? ये थर्ड क्लास क्वालिटी वाले काम नहीं करेंगे, अब गटर नहीं काम करेंगे, अब वो होगा जो जंग को रोक सकता है। इस वक्त उन्होंने वो डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है, उन्होंने इसराइल को पैगाम दे दिया, ठीक है अब हम तैयार, अब बेशक आप हमला कर लें, अब हम इसको इजीली रोक लेंगे। अब इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता है। देखिए 2019-20 के बाद इसराइल की कोई इतनी औकात नहीं रही कि वो जाकर इन पर हमला कर सके, इसीलिए तो आप देखिए उन्होंने अंदर के मुखबिर खरीद कर इस्माइल हानिया को मारा है। वहां पर ईरान अभी तक लैग कर रहा है, ये याद रहे बात। ईरान के अंदर अभी तक उनके फौज के जर्नैल बिके हुए हैं, अभी तक उनकी एजेंसियों के लोग बिके हुए हैं। अब ये सीन तो हो गया है, अब ये अमेरिका को कह रहे तुम स्ट्राइक करो हमारे साथ मिलकर, वो कहते नहीं अब तो डिफेंस सिस्टम आ गया, हमारी तो तबाही हो जाएगी। पहले भी उनके पास था, अब दूसरा S-400 भी है उनके पास, और ये भी नहीं पता कि S-500 भी है उनके पास कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि रूस के पास एक ही तहादी है जो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार है, और वो है ईरान और उसकी प्रॉक्सीज है। तो रूस कभी जिंदगी के अंदर घाटे का सौदा नहीं करता। अब सीन देखिए क्या, जो ये लोग मारे गए हैं, जो इस वक्त इनके लोग मारे गए हैं, रिसेंटली पता चला है हमास की कैद में थे, हमास वाले कहते हैं जी इन्होंने मिसाइल मारा है, वो कहते हैं जी उन्होंने मारा है। बहरहाल जो भी हुआ है, अवाम निकली हुई है सड़कों पर, और वो नेतन्याहू के खिलाफ हमेशा से, अब बहुत ज्यादा। नेतन्याहू ने उनको क्या कहा है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मैं आपके बच्चे को जिंदा नहीं ला सका, मुझे माफ कर दे। वो कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम हमारे सामने माफिया ना मांगो, हमने तुम्हें कहा था डील साइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब वो असल में मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। अब वो हमास के लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर अपने लोगों का सफाया करते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स तबाह करते जा रहे हैं, उनको मारते जा रहे हैं, इसलिए मारते जा रहे हैं कि जाहिर सी बात अभी एक दो प्रेशर आ रहा है वो कैदियों के घर वालों की जानिब से कि भाई इसको पकड़ो, इसको मेंटेन करो, इसको डील करो, फलाना करो। जब एक दफा खत्म हो गए तो प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, वो आजाद हो जाएगा, फिर तो वो खुलकर मारेगा। अभी तो वो कहीं ना कहीं उसको ये बात होती है कि नहीं कैदियों के घर वाले हैं, उनसे बातचीत करनी है, उनको वापस लाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि वहां पर सड़कों को रोक दिया गया है। सेंट्रल इसराइल में लोग सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं नेतन्याहू को कि हम बस, हमारी बस हो गई है, ट्रैफिक जैम है, सारा निजाम वहां पर दरम बरम उन्होंने कर दिया है। देखें ये जो लोग अब मारे गए हैं, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये असल में उनके घर वाले कह रहे हैं। आज पूरे का पूरा मीडिया जो इजराइल के अंदर है, वो पूरे का पूरा मीडिया इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ है। वो कहते हैं उसको पता था कि ये मारे जाने हैं, ये इन्होंने मार देने हैं, जैसे भी सूरत हाल करनी है, लेकिन ये बात तय है कि ये सारे मारे गए हैं नेतन्याहू के खिलाफ। अब पटिशन वहां पर दायर हो रही है कि जी नेतन्याहू को पकड़े, इसने अपनी जंग की है, इसकी वजह से। आपको पता है कि वहां की जो अवाम है वो कितनी ज्यादा इस वक्त गुस्से में है। अब इस सारी अवाम का गुस्सा ठंडा करना, इसका क्या हल है कि एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उस सिचुएशन को खत्म करने के लिए नई सिचुएशन पैदा करनी है। तो नई सिचुएशन क्या हो सकती है? नई सिचुएशन ये है कि आपको फौरी तौर पर चीजों की अदला बदली करनी है, यानी डाइवर्ट करना है, लोगों का ध्यान बटाना है। अब वो क्या है? वो है कि आप ईरान पर हमला कर दे, और ईरान पर अब हमला करने के लिए उनका डिफेंस सिस्टम भी आ गया। तो अब आप करेंगे क्या? अब इस सारी सूरत हाल में देखिए, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ईरान इस वक्त बड़ी ताकत बन चुका है। ईरान की कमी ये है कि अंदर के मुखबिरों से अगर वो निजात हासिल करवा ले तो वो काफी हद तक चीजों को मैनेज कर सकता है। नेतन्याहू अब जा जाकर लोगों को 1000 दफा ये कहता रहे कि भाई मैंने माफी मांगनी है तुम्हारे आगे, वो अब चीजें उनके हाथ से निकल गई हैं। अब आप जो मर्जी कर ले, मामला आपके खराब है। और दूसरा देखिए, अब और भी ये काम हो गया है कि आपको पता है शाम के अंदर इन्होंने, यानी अब तुर्की और इन सब की भी आपस में डील करवा रहे। अब वहां पर नेतन्याहू का मुकाबला खाली से नहीं, उसका पुतिन से भी मुकाबला है।
याद रहे इनका रूस से भी मुकाबला। अब वो कह रहा है कि रूस को भी ठिकाने लगाना है, रूस को ठिकाने लगाने के लिए अब वो प्रेशर डाल रहा है। नाज़रीन, वेस्ट बैंक और गजा में रेजिस्टेंस पूरी तरह से डटी हुई है और अभी वेस्ट बैंक से दर्जनों इजरायली फौजियों की हलाकतों और उनकी जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनके तबाह होने की तफसीलात इस वक्त आ रही हैं। और इसके साथ साथ इसराइल के अंदर बहुत मैसिव लेवल के ऊपर, और इसको एक हतमी राउंड का एहतजाज कहा जा रहा है, जिसमें जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है वो भी सामने आ चुकी है और वो लोगों को कह रही है कि नेतन्याहू को फिल फौर जो है वो गिराया जाए। तो एक हतमी लेवल का जो राउंड है वो शुरू हो चुका है। इस बारे में आपको बताएंगे। कैमला हारिस के हवाले से खबर सामने आ रही है कि वो एक कंप्रीहेंसिव चेंज करने जा रही हैं टुवर्ड इजराइल पॉलिसी, और थोड़े से बीमार हैं, बल्कि काफी बीमार है, तो इस वजह से एमबीएस ने अपनी सारी जो एक्टिविटीज हैं, हालांकि जापान का उनका बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होना था लेकिन वो भी उन्होंने मंसूख कर रखा है। अच्छा नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक बार फिर ये बात सामने आ रही है कि इजराइल बहुत ज्यादा मुतहरिक हो चुका है ईरान के अंदर, यानी जो उसकी प्रॉक्सीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है ना मुतहरिक किया जा रहा है इजराइल की जानिब से, ताकि वो ईरान के अंदर मैसिव लेवल्स के ऊपर ऑपरेशंस शुरू कर दें। इसराइल हैज बिगन सिक्योरिटी मूव्स इनसाइड ईरान टू प्रिवेंट और मिटिगेट द सेवेरिटी ऑफ इट्स रिस्पॉन्स टू द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया। इसराइल ने पूरी तरह से अपनी जो प्रॉक्सीज हैं उनको मुतहरिक करने की कोशिश की है। द एफर्ट्स ऑफ द ज़ायनिस्ट एंटिटी विल नॉट डिटर ईरान फ्रॉम टेकिंग रिवेंज एंड आर डिसीजन टू रिस्पॉन्ड इज इररिवर्सिबल। ये इसराइल की तमाम कार्रवाइयां और ये तमाम उसके शैतानी प्लान्स हमें रोक नहीं सकेंगे और हमारा जो रिवेंज है वो नागुज़ीर है और वो हर सूरत में होगा। तो ये ईरान के हवाले से। अब नाज़रीन, इसराइल के हवाले से जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं उसमें सबसे पहले मैं इजरायली फैमिलीज, जो हॉस्टेजेस की फैमिलीज हैं, उनके दो बयान आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर जरा सूरत हाल आपको बताते हैं। इजरायली मीडिया की जुबानी जरा दो बयान देखिए। फैमिलीज ऑफ द इजरायली प्रिजनर्स, नेतन्याहू हैज लेट द प्रिजनर्स गो एंड स्टार्टिंग टुमारो द स्टेट विल बी शेकन। कल से हम ऐसे मुजाहरे करने जा रहे हैं कि स्टेट विल बी शेकन, हम रियासत को पूरी तरह से हिला के रख देंगे। वी कॉल ऑन द पब्लिक टू प्रिपेयर, वी विल पैरालाइज द स्टेट। हम पब्लिक को कह रहे हैं कि वो तैयार हो जाए, हम रियासत को पूरी तरह से पैरालाइज करके रख देंगे। आपने इतनी शिद्दत वाला बयान फैमिलीज की जानिब से नहीं सुना होगा, ना इजरायली सोसाइटी की जानिब से सुना होगा। तो नेतन्याहू को हटाने के हवाले से मुजाहरे तो कई महीनों से चल रहे हैं और बहुत कुछ हुआ है, उसके घर के सामने में मुजाहरे हुए हैं। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है, जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एक फाइनल राउंड की बात की जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो इंपैक्ट क्रिएट हुआ है ना, जो इजराइल के अंदर एक ड्रामाई सूरत हाल में तब्दीली आ रही है और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानी मुजाहरे कई महीनों से हो रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो अचानक से ये इतनी बड़ी इंटेंसिटी देखने को मिल रही है कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम रियासत को हिला के रख देंगे और रियासत को पैरालाइज कर देंगे और नेतन्याहू की गवर्नमेंट को गिराए बगैर अब रुकेंगे नहीं। तो इसमें जो सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हुआ है वो वेस्ट बैंक ने क्रिएट किया है कि इससे पहले नेतन्याहू के हवाले से अब इजरायली सोसाइटी को क्लियर हो चुका है कि वो प्रिजनर्स को वापस नहीं लाना चाहता। मुझे और आपको पहले दिन से यह बात पता है, लेकिन इजरायली सोसाइटी को यह बात पता नहीं है। जब वहां पर यह बात एस्टेब्लिश हो रही है तो इसके बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स हैं, जिसकी मिसाल मैं माजी में आपको दे चुका हूं कि यही नेतन्याहू था जब याह्या सिवर ने अपना ऑपरेशन सरंजाम दिया अपनी रिहाई के लिए। सिर्फ एक इजरायली फौजी पकड़ा गया था और उसके बदले में याह्या सिवर और सैकड़ों फलस्तीनी रिहा हुए थे। In Israel's deserted north, where town after town lies empty. So the kibbutz were 1,100 people. There is today maximum 100. So it's a bit like a ghost town. It's a ghost town, yeah. One of the very few who've stayed behind, Eyal Dror showed us what the others have fled. 1,000 children. A direct hit on the high school in his kibbutz by a Hezbollah rocket. They hit it in noontime, in the time that the school normally open. You can see the damages here and Nearby a house, badly damaged by another. at that one. It sprayed it with shrapnel. Yes. Yeah. You can see the villages of Lebanon. And the enemy, just over the border, a mile away on higher ground. Maybe now there is a sniper standing there, just aiming. He's watching us. We are a mile from there. Like many Israelis, Eyal is hugely frustrated that Israel's been forced to evacuate so much of its own territory. I think it's a huge mistake.
I do know that the IDF is striking Hezbollah and the IDF is causing damage. It is not enough. We could have done more in order not to normalize unnormal situation. Hezbollah has fired 7,500 rockets at Israel since October the 7th. Some intercepted, others, like this one, 2 days ago, getting through. Wrecking more homes and vehicles in these abandoned streets. The atmosphere in these deserted border towns is eerily quiet. There's a sense of fear, of course, that is caused by these regular rocket attacks and the damage they're doing, but also the knowledge for Israelis left behind that any one of these attacks could be the beginning of something much bigger, a full-scale Hezbollah retaliation that could lead to an even bigger war. 10 months after they abandoned their homes, 60,000 Israelis have not returned to the north. Among those who stayed on at a deserted shopping mall, we heard sentiments shared by many. It's bad, it's scary. We went to the shelters. Of course, they should have attacked Hezbollah a long time ago. There is mounting pressure on both sides of this border for escalation. An unstable and violent status quo has somehow held for 10 months, but could at any point still give way to a much wider war. Dominic Waghorn, Sky News, in the north of Israel. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर